Okay, welcome back. Now I'm continuing with the part 2 of the landmark judgment, the summary of the landmark judgments right from 1950 till 2020. तो quickly I will be explaining again. तो part 1 में हमने हुस्नैरा खातून कर लिया था, wherein I was talking about the speedy trial, right to speedy trial and even the right to give the means state should provide the free legal aid also. तो दोनों बातों को डिस्कस किया था. अब हम यहाँ पे शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस को डिस्कस करेंगे. एंड हेयर इन ऑल्सो द इवन द कोर्ट स्टेटेड दैट ऑनरेबल कोर्ट्स हेल्ड दैट द राइट टू स्पीडी ट्रायल ऑफ एन अक्यूज्ड इफ इट हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड, अगर इसको इन्फ्रिंज कर दिया जाएगा तो जो चार्जेस और कन्विक्शन उन पे लगाए गए हैं उनको भी क्वेश किया जा सकता है. तो एक तो ये बात हो गई है. साथ ही साथ 39A यानी राइट टू लीगल एड आप रीड करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 39A, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया था. एंड इनफैक्ट द पुलिस मस्ट पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमेटी अबाउट द अरेस्ट ऑफ द पर्सन इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट. तो अरेस्ट करने के बाद एक लीगल एड कमेटी होती है, नियरेस्ट आपको पुलिस को जो है उसे भी इन्फॉर्म करना है. साथ ही साथ ये ड्यूटी है मजिस्ट्रेट्स और सेशन जजेस की दैट एवरी पर्सन सो अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म दैट दे हैव राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाई एडवोकेट एंड लॉयर एंड इवन द फ्री लीगल सर्विसेज एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट भी उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है. तो ये उनको बताना होगा. ठीक है, तो ये तो खैर इस केस में डिस्कस किया गया था. अब मैं क्विकली जाऊँगा, आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट आई विल बी टॉक अबाउट द इन which case right now we are talking about the people or the prisoners inside the jail and the torture upon them. So in which case it was stated that even the prisoners do have their fundamental rights, और उनको जो है उनकी जो conditions थी बड़ी worst थी. and means prisoners जो लोग they are in the custody, so while they are in custody, so are they entitled to the fundamental rights while in the custody? Although there may be shrinkage in the fundamental rights, obviously उनके right को कुछ तो curtail किया ही जाता है, क्योंकि अगर if you are not convicted you can easily go here and there, you are easily move here and there anywhere in the territory of India. But in the case you are violating any law and if you are committing some crimes, and then obviously your rights will be curtailed, you can be kept behind the bars, आपको जेल में रखा जा सकता है. तो क्या उनको फिर भी उनके कुछ राइट्स हैं? तो इस केस का जो डिस्कशन था, the very landmark case, that is the Sunil Batra versus Delhi administration to 20th December 1979, and judgment delivered by आप देखिए वी कृष्णा अय्यर. सो वेरी इंपॉर्टेंट केस. इसमें यहाँ पे जो डिस्कस किया था वो था टॉर्चर इन्फिक्टेड अपॉन द प्रिजनर्स इन दी जेल फैक्टर, मतलब जो जेल एरिया में जहाँ उन्हें रखा गया है. ठीक है, एंड इट वॉज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट and a court then intervened in the present case to protect the prisoners. So in the case of Sunil Batra versus Delhi administration, the court gave very obvious answer to the question whether prisoners are persons and whether they are entitled to the fundamental rights. क्या उनके fundamental rights के लिए वो entitled हैं, या इवन उसको ऑब्वियसली आपने उसे कर्टेल तो कर ही लिया है, श्रिंक कर ही दिया है, क्योंकि दे हैव कमिटेड द क्राइम विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी. सो ऑब्वियसली you can be kept behind the bars and restrictions can be imposed upon you. Okay na? So Sunil Batra versus Delhi administration was a revolutionary judgment given by honorable that is the constitution bench, preserving the fundamental rights of the prisoner by invoking article 9, 14, 19 and 21. और मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूँ, ये जो है इंटरट्वाइंड ईच अदर होते हैं ये तीनों आर्टिकल्स. इवन ऑल द अदर आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में they all are interconnected, यानी article 19, 14 and 21. okay, so if your 14 is curtailed, obviously 19 and 21 will be hampered, and if vice versa, and if 21 is affected, then 19 and 14 and each article is connected to the others, they are intertwined each other, they are intermingled with each other. and ये तीनों अगर हम एक वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पे रख दें तो ये गोल्डन ट्राइंगल फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इज रिगार्डिंग व्हाट, सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स के बारे में ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं. इससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में यू विल बी आस्क्ड दिस साइटेशन एंड यू हैव टू मार्क इट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द विच लैंडमार्क लीगल केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लीगल एड एज अ फंडामेंटल राइट. सो शीला बशरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए, इन द सुनैरा खातून केस ऑल्सो we have talked about earlier, we have talked about the in that case also the legal aid के बारे में वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, स्पीडी ट्रायल के बारे में मैंने बताया था. तो ऐसा नहीं है,
अगर आप कंटिन्यूटी में देखेंगे तो ये सारी बातों के बारे में डिस्कशन होता है, और ये हर केस में आप देखेंगे, चाहे वो सुनहरा खातून हो, चाहे वो शीला बरसे हो वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया, तो हर जगह ये चीज़ डिस्कस की गई। बट स्पेसिफिकली इफ इट इज़ आस्क्ड देन फॉर स्पीडी ट्रायल के लिए आप सुनहरा खातून मार्क करेंगे, और इसके लिए आप शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मार्क करेंगे, राइट टू लीगल एड एज अ फंडामेंटल राइट। तो ठीक है, क्विकली आप रीड कर लें आर्टिकल 39A। आगे चलते हैं और इसका स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी चेक करें फुटनोट्स पे, आगे बढ़ेंगे। इन विच लैंडमार्क लीगल केस इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्विकली बताऊंगा, बहुत क्विकली चलूंगा। इंद्रे बेरूबारी है, इंद्रे बेरूबारी यूनियन एक एरिया था, तो इसमें प्रेजेंट केस के अंदर ये बोल दिया गया था, इट वाज हेल्ड दैट, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, वी शुड बी वेरी स्टिक टू द रेशियो, दैट इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था। लेटर ऑन इट वाज ओवर रूल्ड ऑब्वियसली, बट अर्लियर इट वाज हेल्ड दैट the preamble is not a part of the constitution, and this judgment was overruled by the 13 judges bench in the Keshwanandan Bharti versus State of Kerala 1973, आपको पता होगा, and it was held that preamble is a part of the constitution। तो ये हमने क्विकली किया और यही इतना हमें जानने की ज़रूरत है। अब in which landmark legal case honorable Supreme Court held that Parliament has right to amend the fundamental right enshrined in the constitution। अब ये वाला जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड्स आपको देना होगा, बहुत तेज़ी से मैं आपको क्विकली बताऊंगा जजमेंट्स, एंड वी विल कंटिन्यू ऑन एंड वी विल गो अप टू द केशवानंदन भारती। देखिए, सबसे पहले आप समझें कि जब आज़ादी हुई तो उसके बाद स्टेट ने वेलफेयर, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ हैं, इन वेलफेयर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा लैंड एक्विजिशन किया, और बहुत सारा जो लैंड था इट वाज लैंड होल्डिंग थी, तो इन्होंने लगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए वाई शुड वी नॉट टेक द लैंड्स, ठीक है ना, लोगों का लैंड लेके, and we should give them to the people to, and accordingly we should distribute। और obviously 39A 39B, और आप अगर रीड करेंगे DPSPs में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जाती है, और वहाँ पर ये स्टेट की ड्यूटी है। बट यहाँ पर एक बात मैं ऐड कर दूँ, DPSP के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, दीज आर नॉन जस्टिसिएबल, तो यू कैनॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ओके, so DPSPs are not justiciable, wherein fundamental rights are justiciable, हमें पता है। तो खैर बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो मैंने एक आपको ब्रॉडर व्यू दिया, तो इसमें बहुत लोगों की लैंड्स को ले लिया गया था। इशू ये उठता था कि भाई ये जो लैंड लिया गया है क्या ये जेन्यून है, क्या वो एक्ट बना के जो लिया गया है वो लैंड्स वेदर, ये तो चूँकि लोगों ने ये भी कंटेंशन किया था कि ये हमारा राइट है आर्टिकल 19(1)(f) में, उन्होंने ये भी बोला कि भाई लैंड क्यों ली जाए, हमें लैंड नहीं ली जानी चाहिए। तो मैं पहले बता दूं कि अब ये 300A में लीगल राइट बन चुका है, अभी फंडामेंटल राइट रहा नहीं, 19(1)(f) हट चुका है 44th अमेंडमेंट एक्ट से, तो ये हमने एक्स्ट्रा आपको एडिशन दिया। अब हम क्विकली अब जजमेंट्स पे आ जाते हैं, ये तो एक एस्पेक्ट था। अब चूँकि फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो सबसे पहला केस जो व्यू में आएगा वो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। अब इस केस में जो है क्या लेट डाउन किया गया, इसमें यही बोला गया in this case that power to amend right has been upheld on the basis of article 360 ने 368 के तहत ये बोला गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, वो चाहे तो अमेंड कर सकता है इवन दी फंडामेंटल राइट्स, किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकता है, एंड दे हैव द पावर। और ये जो लॉ वो बना के ला रहे हैं ना 368 के अंदर, वो आपके आर्टिकल 13 के 2 में नहीं आता है। इनफैक्ट ये आपसे बोला, मैं आपको एक बार ऐड कर देता हूँ कि देखिए 13 के 2 में ये बोला जाता है कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उससे उस लॉ को अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उससे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इशू ये उठता था, चैलेंज यही किया जाता था कि ये जो किया जा रहा है वो गलत है, और वो जो भी लॉ आप 368 से ला रहे हैं वो आपके फॉल करेगा किसके अंदर, 13 के 2 के अंदर। तो दैट मीन्स इट इज़ वायलेटिंग द पार्ट 3, मेरे फंडामेंटल राइट, मेरे लैंड वगैरह के राइट को ये अफेक्ट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। तो ये बार बार कंटेंशंस रखी जा रही थी, लेकिन इस केस में शंकरी प्रसाद ने बोला नो, द लॉ इट इज़ नॉट ए लॉ, द लॉ विच इज़ मेड अंडर, जो भी आप अमेंडमेंट के थ्रू ला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अमेंडमेंट्स 368 में, वो लॉ नहीं है 13 के 2 के अंदर। ऐसा बोलते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स ने बोला कि येस द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द राइट्स इवन इन दी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहाँ पे था, देखिए शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 वाज चैलेंज्ड इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये तो ब्रॉडर एस्पेक्ट मैंने आपको बताया है. An amendment was challenged that the ground that it violates the part 3 of the constitution and thereof therefore should be considered invalid, and the Supreme Court held that under Article 368 the power to amend any part of the constitution including the fundamental right, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, कर सकते हैं. अब यही सेम रेशियो, सेम डिक्टम जो था, ये सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में, देखिए 51 के बाद 1965 में जब दोबारा ये इशू उठा तो यही सेम रूलिंग यहाँ लेट डाउन करी गई. ये सेम रूलिंग और वॉज रीआइट्रेटेड इन दी सज्जन सिंह केस. तो शंकरी प्रसाद को सज्जन सिंह में ही लगा दिया गया. तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग. आगे बढ़ेंगे. आगे अब एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा. देखिए 11 जजेस बेंच की ये जजमेंट आएगी. अब दूसरी नेक्स्ट जो आएगी तीसरी, इन विच लैंडमार्क केस द फंडामेंटल राइट वॉज कंसिडर्ड एज इनवॉयलेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब किस जजमेंट में बोला गया कि भाई नहीं, यू कैन नॉट टेक अवे द पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट इवन बाई आर्टिकल 368. तो ये किस में बोला? तो 1967 में गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आए. 11 जजेस बेंच थे, ऑनरेबल जजेस बेंच, एंड such a large bench constituted for the first time, and the Supreme Court deliberated that whether means they actually have declared that fundamental rights जो है वो transcendental हैं, transcendental है, and they are inviolable. आप उसे नहीं ले सकते, उन्हें नहीं violate कर सकते हैं. एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैड नो पावर. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास कोई भी पावर नहीं है टू टेक अवे और एब्रिज दी फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने ये लेट डाउन कर दिया. ठीक है, इन्होंने लेट डाउन कर दिया कि नहीं, पार्लियामेंट नहीं टेक अवे कर सकते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को. तो कुल मिला के हुआ क्या, यानी सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की बात को यहाँ पे ओवर रूल कर दिया गया. अब आफ्टर मैथ देखिए क्या हुआ. आफ्टर मैथ के बाद ऑब्वियसली पार्लियामेंट विल कम अप. तो वो दे एक्चुअली कम अप विद 25th अमेंडमेंट एक्ट वगैरह, और इनफैक्ट दे वर ट्राई टू ओवरकम द जजमेंट ऑफ द गोलकनाथ कि वो भाई वेलफेयर पॉलिसीज़ तो लानी है. तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए, और अमेंडमेंट्स करके उन्होंने जजमेंट से अपने आप को ओवरकम कर लिया. ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगर, तो इसमें इनफैक्ट मैं यहाँ पे, चूँकि मैंने अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं क्विकली यहीं पे समअप भी करता हूँ. तो यहाँ पर जैसे ही गोलकनाथ की जजमेंट आई, तो उसके बाद 1973 में जब ये केशवानंदन भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, इस केस में लेट डाउन किया गया कि भाई दी Parliament do have the power to amend any part of the constitution including the fundamental right of the part 3 of the Indian constitution को भी वो amend कर सकते हैं, provided the basic structure of the constitution should not be touched upon or affected. मतलब basic structure को आपको affect नहीं करना है, जैसे कि supremacy of law, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स में जो भी जैसे सेक्युलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, एंड दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ पावर, लाइक जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स वगैरह हैं. ठीक है, आर्टिकल 50 से जो आता है. इनफैक्ट सो मैनी थिंग्स, जुडिशल रिव्यू, तो कुछ ऐसी बातें थी कि उनको ध्यान में रखते हुए वो बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, उनको आपको अफेक्ट नहीं करना है. इनफैक्ट और आप जो है इवन फैटर्निटी को आपको ख़त्म नहीं करना है, फैटर्निटी को आपको ख़त्म नहीं करना है, सेक्युलरिज्म आपको नहीं ख़त्म करना है, एंड इनफैक्ट यू कैन इवन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये फाइनली इन्होंने लेट डाउन किया केशवानंदन भारती केस में. ठीक है, 13 जजेस बेंच है, तो ये आपको याद रखना होगा. तो कुल मिला के यहाँ पर हमने जो है बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमने शंकरी से, सज्जन पे, गोलकनाथ से, फिर हम फाइनली 1973 केशवानंदन भारती पे आ गए. आई थिंक इट वॉज क्लियर टू यू. मैंने क्विकली इसे समअप किया है. आपको ब्रॉडर एस्पेक्ट मैंने ज़्यादा नहीं दिया है, डीप में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन एक आपको जनरल आइडिया मैंने दे दिया है. अब मैं आगे चलता हूँ. इन विच लैंडमार्क केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the power of judicial review vested in the high courts under article 226 and right to move to the supreme court under article 32 is an integral and essential feature of the constitution. तो देखिए याद रखिएगा, एक एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक्चुअली इसमें हुआ क्या था. देखिए ये लैंडमार्क केस है विच डिसाइडेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आर्टिकल 323 एंड 323B ए एंड बी के लिए किया गया था, और इसने कर दिया था एक्चुअली इट आउस्ट कहते हैं ना, डेल्ट विद द एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन द सर्विस मैटर्स. तो ये ट्राइब्यूनल से रिगार्डिंग है, तो ट्राइब्यूनल से जुड़ा हुआ केस है. तो ये ट्राइब्यूनल्स जो थे इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को. तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एक्सक्लूजन ऑफ द राइट टू अपील अंडर आर्टिकल 226 और 32 इज जो एक्सक्लूड कर रहे हैं इस राइट को, वो बात गलत है. मतलब पूरा उन्होंने इसको आर्टिकल को या पूरे
ये पूरा आर्टिकल को नहीं इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, बस दिस पार्ट wherein it was written that right to appeal to the or even high courts under article 226 and 32 को जो ये रोक रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, ये पार्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। And these provision in Article 323A and 323B are unconstitutional because they deny judicial review, which is a basic feature of the Constitution। देखिए तो यहाँ पे आ भी गया, जुडिशियल रिव्यू भी आ गया, तो मैंने पहले आपको बताया था वो भी एक जो आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा 323A ट्राइब्यूनल से जुड़ा था, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो अपील की जो जुरिडिक्शन होती है, एक्सक्लूड कर दिया था, उसे इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। देखिए मैं इसे तेज इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को या सभी केसेस को एकदम फैक्ट्स और आपको इश्यूज़ और वो सारी बातें बताऊंगा तो फिर एक इंडिविजुअल लेक्चर में तो इट विल टेक, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट, आई कैन मेक इट अदरवाइज, तो क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। हमें रेशियो पता होना चाहिए जजमेंट्स का, दैट इज़ द मेन एक्चुअली एजेंडा विच इज़ एक्चुअली फुलफिल्ड हो रहा है हमारा। तो हमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। वी आर नॉट सपोज टू गो इन टू द दैट काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टडी, बहुत ज़्यादा स्टडी में नहीं जाना, हमें बस रेशियो पता होनी चाहिए फॉर आवर एग्जाम पर्पजेस के लिए। आगे चलेंगे। इनफैक्ट आप जब अपने कॉलेजेस टाइम में तो यू विल ऑब्वियसली रीड ऑल दीज थिंग्स, तो हमें भी क्विकली काम करना है। अब मैं नेक्स्ट सेशन में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको वन लाइनर में कुछ जजमेंट्स बताऊंगा जो कि आपके इनफैक्ट जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग मे बी क्लैट एग्जाम or maybe other judicial exams। Okay, so thank you very much, god bless to everyone।